तो आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको दो क्लिप्स दिखाएंगे। पहली क्लिप है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने यूएनजीए में एक स्पीच दिया और उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र 5 मिनट तक करीब किया है। वो क्लिप दिखाएंगे, अपने कमेंट्स दूंगा। उसके बाद उसका रेस्पॉन्स जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने दिया, 1 मिनट का रेस्पॉन्स वो दिखाऊंगा, फिर मैं अपने कमेंट्स आपको दूंगा। Similarly, like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. These resolutions mandate a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. Ladies and gentlemen, since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. Day in and day out, 900,000 Indian troops terrorized the people of occupied Jammu and Kashmir with draconian measures including prolonged curfews, extrajudicial killings, and the abduction of thousands of young Kashmiris. At the same time, in a classic settler colonial project, India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. This hackneyed tactic is employed by all occupying powers, but it has always failed. In Jammu and Kashmir too, it shall fail by the grace of God. Ladies and gentlemen, the Kashmiri people are resolute in rejection of the false Indian identity. The New Delhi seeks to impose upon them very, very severe conditions, and atrocities are being committed every hour. India's policy of brutal coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. Inspired by the legitimacy of their epic struggle, they remain defiant. Their heart-wrenching stories remind us that behind every statistic lies a human life, a dream deferred, and a hope shattered. Even more worryingly, it is engaged in massive expansion of its military capabilities, which are essentially deployed against Pakistan. Its war doctrines envisage a surprise attack and a limited war under the nuclear overhang. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Therefore, to secure durable peace, India must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019 and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN security resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Mr. President, remember, illegal occupation creates a fresh hell every day
in the killing fields of Palestine and in the pristine valleys of occupied Jammu and Kashmir. Apart from conflicts, Mr. President, the 21st century has brought a cascade of crises, including the reversal of development and the mounting impact of climate change. तो दोस्तों, आपने देखा, ये मतलब 1/4 स्पीच जो शहबाज शरीफ की थी वो केवल कश्मीर के ऊपर थी। ये प्रोग्राम बहुत बड़ा ना हो जाए क्योंकि क्लिप्स भी हैं इसमें, इसलिए मैं आपको शहबाज शरीफ साहब को केवल 2 या 3 चीज़ बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो साहब, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर 6 के अंडर में आता है, ये रिजोल्यूशन 47, और ये नॉन बाइंडिंग है। और ये नॉन बाइंडिंग आपने बनवाया था, इसको इंडिया ने नहीं बनवाया था। कि जो रिजोल्यूशन है ये इट इज़ नॉट बाइंडिंग टू आइदर पाकिस्तान और टू इंडिया। ठीक है साहब, तो ये मत कहिए कि रिजोल्यूशन के हिसाब से सॉल्यूशन निकलना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो बात कर रहे हैं आप, कश्मीरी अगर मैं मान भी लूँ तो ये चाहता है कि ना हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हम एक सेल्फ मुख्तार अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो यूएन की रिजोल्यूशन है वो ये नहीं बोलती हैं। वो ये बोलती हैं कि रिजोल्यूशन जो होगा, जो इलेक्शंस होंगे, उसके हिसाब से कश्मीरी लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आइदर दे वांट टू गो टू इंडिया और दे वांट टू गो विद पाकिस्तान। वो अलग कंट्री नहीं बना सकते हैं साहब, एक बार उसको पढ़ लीजिए। और दूसरी बात जो आपने बोली कि इंडिया में 9 लाख ट्रूप्स कश्मीर में लगी हुई है साहब, 12 लाख तो टोटल ट्रूप्स है इंडिया की, उसमें से 9 लाख क्या हम केवल कश्मीर में लगा देंगे तो चाइना के साथ कौन लड़ेगा? पूरे चाइना के बॉर्डर में जो 3700 किलोमीटर का पूरा हमारा एरिया है, उसमें कोई पुलिस फोर्स लगी नहीं है। तो साहब मैं आपको ये बता दूं, शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा स्टडी कर लिया कीजिए, कम से कम यूएनजीए में आने के पहले इंडिया की 3.43 लाख ट्रूप्स हैं पूरी कश्मीर में, और वो भी हल्के हल्के कम हो रही है। आपने पूरे स्पीच में 19 बार कश्मीर का नाम लिया है और इंडिया का नाम लिया है। अब पाकिस्तान का नाम आपने कितनी बार लिया है, ये अपनी स्पीच आप दोबारा देख लीजिएगा। और दूसरा आपने ये बोला है कि आउटसाइडर्स को सेटल किया जा रहा है कश्मीर में। एक बंदे का नाम बता दीजिए बाहर के आदमी को जिसको कि वहाँ पे सेटल किया गया है। आपने इलेक्शंस के बारे में जो कश्मीर में चल रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं बोली है। आपने केवल एट्रोसिटीज़ वहाँ पे क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आपने बात की है। 22 फॉरेन डेलीगेट्स गए थे इस बार इलेक्शन कवर करने के लिए सेकंड फेज के, और लास्ट में उन्होंने यही बोला है कि इट वाज ए फैंटास्टिक इलेक्शन एंड इट इज़ ए वेरी वेरी सेफ प्लेस नाउ। तो अगर एट्रोसिटीज़ होती है ना आज के दिन में तो वो रुकती नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 सेकंड में पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में जाती है। अगर एक भी इलीगल तरीके से एक बंदे के साथ भी एक्शन होता है जम्मू एंड कश्मीर में तो ये न्यूज़ बन जाती है। तो आज की आपकी ना हमारी कोई गवर्नमेंट भी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती है कि कोई काम इलीगल वे में करे। ठीक है साहब। और दूसरा आपने बुरहान वाली मैं क्या वर्ड बोलूँ उसके बारे में, बुरहान वाली का आपने नाम लिया। आप इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हो, इंडिया के साथ अपना अच्छे संबंध बनाना चाहते हो, और बुरहान वानी जो कि एक तरीके से इंडिया का सिटीज़न था उसके बारे में आप यूएनजीए में स्पीच दे रहे हो। इसका मतलब है कि ज़िंदगी में आप कभी सुधर नहीं सकते। और आपने एक बात बोली 5 अगस्त 2019 वाली आर्टिकल 370 और 35A के बारे में। आपके खुद आर्मी चीफ ने जब इंडिया ने ये दोनों धाराएं हटाई थी तो आपके
आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बोला था कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये इंडिया का अपना इंटरनल मैटर है, कश्मीर का इशू को वैसे ही का वैसा रहेगा, लेकिन ये जो धारा 370 है ये उनका इंटरनल इशू है। भाई हमने इंटरनली उसको लगाया था, हमने हटा दिया, अब आप कह रहे हो ये दोबारा लगाओ। अरे वाह 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 वाह, मतलब आपके कहने पे हम लगाएंगे, आपके कहने पे हम हटाएंगे, क्योंकि ये तो हम ही ने खुद लगाई है, ये कोई यूएन ने थोड़ा ना बोला है लगाने के लिए। धारा 370 जो भी उनको बेनिफिट्स दिए गए थे 370 के अंदर में, दैट वाज ए टेम्परेरी थिंग, दैट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो हटा लिया, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा अभी। उसका रेस्पॉन्स जयशंकर साहब ने 1.5 मिनट में क्या दिया, आप पहले वो देखिए। Terrorism is antithetical of everything that the world stands for. All its forms of and manifestations must be resolutely opposed. The sanctioning of global terrorists by the United Nations should also not be impeded for political reasons. Madam President, many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. सुन रहे हैं साहब, इसमें मुझे 2 चीज़ बहुत पसंद आई जयशंकर साहब की। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीडीपी जो नीचे जा रही है उसका रीज़न कुछ और नहीं, रेडिकलाइजेशन है। डायरेक्ट कनेक्शन जीडीपी से रेडिकलाइजेशन, और एक्सपोर्ट्स टेररिज्म। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बोली कि जो पाकिस्तान की आज की कंडीशन है वो उनका कर्मा है। दोस्तों, मैं पूरा एक प्रोग्राम करूंगा इन तीनों पॉइंट्स पे लेके। जो कर्मा बिल्कुल सही बोला है कि एक बंदे को उसके जो हरकतें होती हैं उसका जन्म होता है, उसकी जो उसने सच्चाई, अच्छाई और बुराई की होती हैं उसका फल उसे उस जीवन में ही मिलता है। और कंट्रीज़ में भी अगर आपने बुराइयां ही की होती हैं तो उसका फल आपको मिलता है। और ठीक है, एक जन्म में नहीं मिलता है लेकिन 100 साल में तो मिलता है। और यही पाकिस्तान के हुआ है, और यही जयशंकर साहब ने बोला है कि ये आपके बुरे कर्म थे जिसके कारण
आज आप इस कंडीशन में हैं, अब आप बाहर वालों को मत बोलियो ये हुदो हनूदो की साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी। हर कंट्री आपके साथ साजिश करता रहता है। आपके पास ढेले का कुछ नहीं है किसी को देने के लिए, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया साजिश करती है आपके ऊपर, क्योंकि आप मुसलमान हैं। तो दोस्तों, ये मुझे उनके ये 3 वर्ड्स इतने ज़्यादा पसंद आए हैं, GDP इज इक्वल टू रेडिकलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टेररिज्म, एंड द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान इज बिकॉज ऑफ द कर्मा।